वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 6 फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, अर्लियर इन पार्ट 1 and part 2 we have discussed 30 most expected questions for JK SSB. So in part 3 today we are going to discuss 20 most expected questions for JK SSB exam preparation. Friends, if you are preparing yourself for the JK SSB jobs, then this topic is most important for your preparation and selection. So without wasting time, let's start. Today we will start from question number 31. Question number 31 is, the most important source of revenue to the states is. Here A is sales tax, B is service tax, C is excise duty and D is none of the above. Guys, guess the answer. Here the right answer is option A, that is sales tax. The most important source of revenue to the states is sales tax. Question number 32 is, the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets is called. The difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets is called. This question is most important. So here A is fiscal deficit, B is budget deficit, C is effective revenue deficit and D is primary deficit. Guys, guess the answer. I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा. Here the right answer is option C, that is effective revenue deficit. Question number 33 is, the difference between total expenditure and total receipt is. The difference between total expenditure and total receipt is, here A is fiscal deficit, B is budget deficit, C is primary deficit and D is revenue deficit. Here the right answer is, guys, guess the answer. Here the right answer is option B, that is budget deficit. The difference between total expenditure and total receipts is budget deficit. Next question is question number 34. The difference between total expenditure and total receipts except loans and other liabilities is called. Very important question. Here A is fiscal deficit, B is budget deficit, C is primary deficit and D is revenue deficit. Question number 34. Here, guys, guess the answer. Here the right answer is option A, that is fiscal deficit. The difference between total expenditure and total receipts except loans and other liabilities is called fiscal deficit. So option A is the right answer. Question number 35 is, the difference between fiscal deficit and interest payment during the year is called. The difference between fiscal deficit and the interest payment during the year is called. A is fiscal deficit, B is budget deficit, C is primary deficit and D is revenue deficit. Here the right answer is question number 35. Here the right answer is, guys, guess करो आंसर को. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसका जो आंसर है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 इज, सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक वर्ड मिसप्रिंट हो गया है. द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड इज काज्ड बाय. 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं एंड यू हैव टू टिक ओनली वन ऑप्शन, दैट इज right option. The leading cause of preventable blindness in the world is caused by. Guys, guess the answer. Here the right answer is, यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज क्लैमिडिया ट्रेचोमैटिस. ठीक है, क्लैमिडिया ट्रेचोमैटिस जो है इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. Viruses multiplies in. Here A is soil, B is dead tissue, C is living tissue and D is cultural medium. Guys, this question is most important. और एक जो है और आपको जो है मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जितने भी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से जो है आप एक दो बार रिवाइज कर लेना. बिकॉज अभी क्या है, कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, सो इसमें कोरोना भी वायरस है, सो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है.
So viruses multiplies in, guys guess the answer. Here the right answer is option C, that is living tissue. Viruses multiplies in living tissue. कहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं वो? लिविंग टिश्यू में. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज. देखो यहाँ पे फिर जो है वायरस का क्वेश्चन आया है. लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज. हेयर guys guess the answer. 4 options are there and you have to take only one option, that is right option. Here the right answer is citrus tristaja. ठीक है, citrus tristaja is the right answer. longest known virus कौन सा है? citrus tristaja. Question number 39 is the bacteriophage contains. The bacteriophage contains an enzyme known as. Important question. उसे क्या बोलते हैं? Question number 39. यहाँ पे जो question number 39 है उसे क्या बोलते हैं? A is dehydrogenase, B is urease, C is protease and D is lysozyme. Here guys guess the answer. The right answer is option D, that is lysozyme. यहाँ पे जो राइट ऑप्शन, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपका? लाइसोजाइम. ठीक है, लाइसोजाइम इज द राइट आंसर. सो यहाँ पे जो है एक बार हम टिक कर देते हैं इसको, लाइसोजाइम को. दिस इज द राइट आंसर. Next question is question number 40. AIDS virus has effect upon. AIDS virus has effect upon. Here A is leukocytes, B is lymphocytes, C is erythrocytes and D is thrombocytes. So जो ल्यूकोसाइट्स है इस पे होता है इसका इफेक्ट, या फिर लिम्फोसाइट पे होता है, या फिर इरिथ्रोसाइट्स पे होता है, या फिर जो थ्रोम्बोसाइट्स है उसके ऊपर इसका जो है इफेक्ट होता है. गाइज यू हैव टू गेस. सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 40. इसका जो राइट आंसर है, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर जो है वो गेस कर लिया होगा. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स यानी कि जो लीवर है हमारा उसके ऊपर जो है ये इफेक्ट करता है, उसे डैमेज कर देता है, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है. सो लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है गाइज, मैं जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. एनिमल्स दैट आर रूटीनली इन्फेक्टेड विद अ प्रोटोजोआन आर पैरासाइट आर टर्म्ड एज. एनिमल जो कि रूटीनली अफेक्ट होते हैं किसके साथ? विद प्रोटोजोआन एंड आर पैरासाइट, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? हेयर ए इज डेफिनेटिव होस्ट, बी इज इंटरमीडिएट होस्ट, सी इज रिसर्बियर होस्ट एंड डी इज पैरासिटिक होस्ट. हेयर द राइट आंसर इज, गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज रिसर्बियर. क्या है यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज रिसर्बियर होस्ट. ठीक है, रिसर्बियर होस्ट इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय. देखो जो मैक्सिमम लिमिट होती है पार्टनर्स की इन ए फर्म इज स्पेसिफाइड बाय. यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हैं, सॉरी एक्ट दिए हैं, यहाँ पे 4 एक्ट दिए हैं, तो आपने जो है उसमें से एक को टिक करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय. ए इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बी इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सी इज द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड डी इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985. गाइज गेस द आंसर. Here the right answer is the Indian Companies Act 1956. This is the right answer. Option C is the right answer. एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. The maximum limit of partners in a firm has been specified by.
the Indian Companies Act 1956? Question number 43 is a partner who never takes active part in the conduct of the business of the firm. A partner who never takes active part in the conduct of the business of the firm is known as. एक ऐसा पार्टनर जो कि कभी भी एक्टिव तौर पे जो है जो कंपनी है उसमें बिजनेस में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे क्या कहा जाएगा? पार्टनर है लेकिन कभी भी जो है वो कोई भी जो उसकी एक्टिविटी है, काम काज है, उसमें जो है वो क्या एक्टिव मोड पे काम नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? हियर ए इज़ नॉमिनल पार्टनर, बी इज़ एक्टिव पार्टनर, C is sleeping or dormant partner and D is sub partner. Guys, guess the answer. Here the right answer is option C, that is sleeping or dormant partner कहा जाएगा उसको. A partner who never takes active part in the conduct of the business of the firm is known as sleeping or dormant partner. This is the right answer. Question number 44 is dissolution of partnership must take place when. देखो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करने ही पड़ेंगे. कोई भी चैनल जो है गोल के किसी को नहीं पिला सकता, ठीक है? हार्ड वर्क जो है आपको ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स. सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग जो है हार्ड वर्क कीजिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए. देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन टू गेट योर एम, ठीक है? एक ही तरीका है अपनी एम को पाने का और वो है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं है. मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम क्या करते हैं कोई भी वीडियो जब ऑन करते हैं एक दो क्वेश्चन सुनते हैं, कई बार क्या होता है इंटरेस्ट नहीं बनता और हम क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको. फ्रेंड्स दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू गेट योर एम. अगर हमें एम पानी है तो भाई अगर यहाँ पे हम वीडियोस नहीं देखेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल की वीडियोस, कहीं भी आप देखो बट आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. क्वेश्चंस जो है सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे, तभी जो है आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? मानता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जो है किसी की अप डाउन हो सकती है, बट यू हैव टू इग्नोर दैट, ठीक है? बिकॉज यू हैव नो नीड टू फाइंडिंग फॉल्ट्स, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. आपको जो है हर एक चैनल जो है उस पर जो भी कंटेंट मिलते हैं उससे आपने कुछ नई चीज़ अगर मिल रही है आपको कोई बेनिफिट वाली, तो उसको जो है आपने क्या करना है, अडॉप्ट करना है. एंड यू हैव टू स्किप द बैड थिंग्स देयर, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन जो है किसी की थोड़ा सा मदर टंग या कैसे जो है अप डाउन हो सकता है, बट आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे. उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, आप जो है अपनी हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस, ठीक है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ए इज अ पार्टनर्स मिसबिहेव्स, बी इज ए पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, सी इज बिजनेस इज रनिंग एट ए लॉस एंड डी इज ए पार्टनर डाइज. सो हेयर द राइट आंसर इज. आई होप आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ए पार्टनर डाइज. डिसोल्यूशन जो है ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस, वो कब जो है हैपन होता है, डिसोल्यूशन जो है वो कब जगह लेता है, जब कब स्थान लेता है, वो तब जो है स्थान लेता है जब क्या होता है, ए पार्टनर डाइज, ठीक है? डिसोल्यूशन जो है पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, फिर डिसोल्यूशन हो जाता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ए पार्टनर डाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. पार्टनर्स current accounts are opened when their capital account are. Partners current account are opened when their capital accounts are. Important question. A is fixed, B is fluctuating, C is none of these and D is semi-permanent. देखो partners current accounts are opened when their capital accounts are. Here the right answer is, this is 45th question. So here the right answer is fixed. Sorry, इसका जो right answer है that is fixed. Partners current accounts are opened when their capital accounts are fixed.
Question number 46. The interest on the capital accounts of partners is credited to. The interest on the capital accounts of partners is credited to. Here A is interest account, B is partners capital account, C is profit and loss account, D is none of the above. The interest of the capital account of partners is credited to. Here this is 46 number question. So here the right answer is option B, that is partners capital account. The interest on the capital accounts of partners is credited to partners capital account. This is the right answer. Next question is question number 47. In the absence of an agreement to the contrary, in the absence of an agreement to the contrary, partners share profit and losses in. In the absence of an agreement to the contrary, partners shares profit and losses in. अगर एग्रीमेंट नहीं किया है, एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करते हैं वो? हेयर ऑप्शंस आर द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, C is the ratio of average capital and D is equal ratio. Guys, guess the answer. Here the right answer is, this is question number 47. So question number 47 का जो right answer है वो है आपका option D, that is equal ratio. देखो अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है आपने रेशियो का, तो भाई जब कोई लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो इक्वल शेयरिंग में ही वो बंटेगा, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 48 is, in the absence of an agreement to the contrary, the partners. This question is also important. In the absence of an agreement to the contrary, the partners क्या होता है? A is are entitled 6% interest on their capitals only when there are profits. B is are entitled 9% interest on their capitals only when there are profits. C is are entitled for interest on capital at the bank rate only when there are profits. D is are not entitled for any interest on their capitals. So this is आपका क्वेश्चन नंबर 48. सो जो 48 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स, ठीक है. Option D is the right answer. Question number 49 is, which of the following is correct statement? यहाँ पे A है, a firm may not acquire a joint life policy on the life of the partners. B है आपका, retirement of a partner results in reconstitution of the firm. C is for past profit or reserves. The amount is not credited to all the partners in the old profit sharing ratio. D is the amount of general reserve is transferred to partners capital account in capital ratio. Here the right answer is option B. यहाँ पे जो option B है वो क्या है हमारा right answer है, वो क्या है? Here right answer is retirement of a partner results in reconstitution of the firm, ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर. यहाँ पे पूछा गया है द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर. ए इज बिल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बी इज बिल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, सी इज मे हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, और डी है नन ऑफ दीज. द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर. अभी देखते हैं इसमें से जो सही कौन सा है. देखो जो करंट अकाउंट होता है हमारा उसमें क्या होता है, कई बार उसमें जो है डेबिट भी हो जाता है और कई बार जो है क्या होता है उसमें क्रेडिट हो जाता है. डेबिट कैसे होता है, जैसे बैंक जो है अपने आप पैसे जो है वो क्या करता है डिटेक्ट करना शुरू कर देता है. अगर हमारा मान लो 1000 से कम पैसा है जो करंट अकाउंट में, तो क्या होता है बैंक अपने आप जो है पैसे कट करना शुरू कर देता है, और कई बार क्या होता है हम जो है माइनस में चले जाते हैं. सो यहाँ पे वही बोला गया है
कि या तो उसमें क्रेडिट होगा या फिर जो है आप क्या होंगे उसमें डेबिट में होंगे। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 50 का जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये थे आज के जो क्वेश्चंस, हमारे 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपके जो लाइक्स हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आज जो है मैं जो एक हमारे डॉक्टर श्रीवास्तवा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि बेस्ट फैकल्टी जो है उन्होंने हमें लिखा था कमेंट में। सो मैं उनका जो है बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपकी ये जो कमेंट है आपके, ये जो आपने हमें इतनी बड़ी जो डेजिग्नेशन दी है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर खरा उतरूँ। सो फ्रेंड्स, देखो ऐसा है, इतने बड़े लोग जो हैं अगर किसी को मोटिवेशन देते हैं तो नेचुरली वो जो मोटिवेशन है, जो उनका प्यार है, वो रंग लाता है। सो आई होप आई विल सुक्सीड। थैंक्स सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस डेजिग्नेशन। सो फ्रेंड्स, आप भी जो है कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि इससे क्या है कि कोई भी चैनल जो है आपकी हेल्प के साथ ही मोनेटाइज होता है। और आजकल तो यूट्यूब ने भी बहुत सारे क्या है काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया रख दिया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। बाय बाय।